Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of yourself. Students, I hope you are also taking care of your eyes also, because as I have sent you the message yesterday, you have to spend most of the time in front of the electronic gadgets. So I hope you are taking care of your eyes by washing them regularly and doing some simple exercise, right? So students, this is Rabi. Welcomes you all to the virtual classroom of your life skills, class 8, and date is 22nd of August 2020. So students, let's start our class without wasting any of the time with a very short prayer. Let's begin. I request you all to join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and His blessings on us. Thank you. Dear students, open your eyes now. And dear students, I hope you all know the meaning. Meaning in the sense, I hope you all know the value of doing prayer. Right? I hope you all know that God is the only one who is going to protect us and who is with us in each and every situation of our life. Right? So let's start with our today's topic. Today, page number 12, and we are going to start with the activity 3. Last week I have given you one homework, activity 2, and page number 11, the example which is given. See students, why I am giving you homework, activities in a homework, because these activities are related to your personal experience, your life, your goal. These cannot be solved in the class, and you are not a small kid कि आपको मैम बोर्ड पे लिखवाएंगी या मैं आंसर दूंगी तो आपको यही लर्न करना है, राइट? You can use your own mind, और स्पेशली गोल्स के लिए तो सबके अलग अलग होते हैं, कभी एक हो ही नहीं सकते. So you have to be do it yourself. Okay, so let's start with the activity 3. Like this activity is very easy and we can do it in our classwork. So we are doing, but maybe the other activities are not that kind of type कि हम उसे क्लास में कर सके. So that's why मैं आपको वो homework देती हूँ. Okay. So we have done the topic identifying the benefits of achieving the goal, right? कि हमारे क्या क्या benefits हो सकते हैं goal को achieve करने के लिए. So first one is, what is the question? Different careers require different educational qualification. Let's see if you are able to match the educational qualification with their careers. Okay, I'm not giving you the numbers. Let's match. ठीक है, हम पहले वर्बली करेंगे और उसके बाद आई शो यू द आंसर्स. MBBS कौन से करियर से रिलेटेड है? आई होप आप सबने मुन्ना भाई बहुत अच्छे से देखी है, तो आई होप मुन्ना भाई क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर. सो दिस क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ डॉक्टर. यस, BL और ML. BL and ML, it is related to law, so it's lawyer. BE, Bachelor of Engineering, that is engineer. CA, Chartered Accountant, as the accountant name comes, so accountant. BEd or MEd, it's teacher. Okay, so I hope the sequence is right. 5, 1 accountant, 5, 1, 4, 2 and 3. 5, 1, 4, 2 and 3. Okay, so let's start our today's fresh topic, that is identifying obstacles and challenge. Students, if you remember my last class, we have done one SWOT analysis, SWOT, SWOT analysis, in which you have to, in which I have explained that you have to identify your strength, weakness, opportunities and strength, right? So whatever are threats, these are the obstacles and challenges which we have to face. Okay? I hope you remember this one, SWOT analysis. Again, I am telling you as WOT, strength, opportunities, weakness and threats. So जो ये threats होते हैं, these are our obstacles and challenges. ठीक है, ये हमारे ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस होते हैं. अब ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस क्या होता है, मैं बहुत छोटे से एग्जांपल देती हूँ. हमने जो फर्स्ट जूम क्लास करी थी तो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू क्रिएट अ विजन बोर्ड. विजन बोर्ड में हमने क्या सीखा था, हमने ये निकाला था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर दिस अनलॉकिंग, मतलब सॉरी आफ्टर दिस लॉकडाउन. तो मैंने बताया कि यस वी आर गोइंग टू ईट अ गोलगप्पा. ठीक है, तो हम गोलगप्पा खाएंगे. तो अब गोलगप्पा खा तो सकते हैं. व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस वी आर फेसिंग? जिसके हम यहाँ खाने जाएंगे
इज इट सेफ, क्या वो ग्लव्स पहन के उसने बनाया होगा, सब कुछ कराया, क्या उसने प्रॉपर सैनिटाइजेशन करी होगी, कैन वी ईट दैट, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग। अगर मैंने सपोज खा लिया तो मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा या पड़ूंगी, या फिर कुछ गलत तो नहीं होगा। सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर स्मॉल गोल, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग गोल, तो सपोज हम इसकी बात करते हैं, अगर सपोज मुझे सीए बनना है, तो ठीक है, चलो मैंने 10th तक पढ़ लिया, 12th तक अभी मेरी स्कूलिंग हो गई। आफ्टर दैट व्हाट चैलेंजिंग आई एम फेसिंग, एम आई एबल टू टेक कोचिंग फ्रॉम फार अवे फ्रॉम माई हाउस। जो मुझे कोचिंग लेनी है, क्या मैं अपने घर से दूर रह के ले पाऊंगा, क्या मैं हॉस्टल में एडजस्ट हो पाऊंगा, या फिर जो उसकी पढ़ाई है, मैं बनना तो चाहता हूँ बट येस आई एम नॉट एबल टू डू द स्टडी, क्या मैं वो सब चीजें कर पाऊंगा। सो देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस कम व्हेन यू आर अचीविंग योर गोल, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिडिक्ट चैलेंजेस बिफोर हैंड। हमेशा अच्छा होता है कि आप चैलेंजेस को प्रिडिक्ट कर लो पहले ही, एकदम से। अब मैंने आपको पहले बताया कि 2 गोल के ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको, मतलब एग्जाम्पल्स दिए, नॉट ऑप्शंस, एग्जाम्पल्स दिए। तो हम क्या इसमें से, मतलब मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। अगर मैं ये सब चीजें पहले सोच के नहीं रखूंगी तो फिर क्या होगा कि जब एट अ पॉइंट मैं अपना गोल अचीव करने वाली होंगी, जब आई एम ऑन माई बिल्कुल लास्ट स्टेज टू अचीव माई गोल, तो वो एकदम से बहुत अजीब लगेगा, बिकॉज चैलेंज आ गया एकदम से, तो मैं उसे कैसे अचीव करूं, ठीक है। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स गोल सेटिंग। वाई? बिकॉज इफ यू नो व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर लाइकली टू फेस, यू आर ऑलमोस्ट हाफ वे टूवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशन। अगर आपको पता है कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, तब तो आप सॉल्यूशन भी इजीली ढूंढ लोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करोगे, लाइक दिस कोरोना वायरस इज अनप्रिडिक्टेबल, ये लॉकडाउन पीरियड इज अनप्रिडिक्टेबल, अनलॉक इवन इज अनप्रिडिक्टेबल, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था, तो हम इससे ओवरकम कर ही नहीं पाए, ठीक है ना। अगर हमें थोड़ा सा भी पता होता कि दैट दिस पैंडेमिक इज गोइंग टू बी द वर्स्ट, ठीक है ना, इंडिया में इट्स गोइंग टू बी द वर्स्ट सिचुएशन, सो हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते, लेकिन हमें पता ही नहीं था, तो हम इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाए। So let's see some problem challenges while achieving goal through Messi's example. I hope Messi को सब जानते हो, ठीक है ना। He is a football player. तो Lionel Messi is an Argentinian football widely regarded as one of the greatest players of modern generation. फुटबॉल प्लेयर है अर्जेंटीनिया का और एक ग्रेटेस्ट प्लेयर है मॉडर्न जनरेशन का। ही प्लेज फॉर FC बार्कलन एंड द अर्जेंटीना नेशनल टीम। किस किस के लिए खेलता है? FC बार्कलन एंड अर्जेंटीना नेशनल टीम। ही हैज वन फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 4 times, अ रिकॉर्ड ऑलरेडी। ये ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है क्योंकि इसने फीफा वर्ल्ड प्लेयर कितनी बार? 4 times, चौथी बार जीता है। He began playing from an early age and his talent was soon apparent. बहुत जल्दी ही वो खेलना शुरू कर दिया था उसने, और उसका टैलेंट जो है वो सभी लोग जल्दी से जान गए थे। However, at 11, Messi was diagnosed with a ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, यानी कि उसको एक प्रॉब्लम थी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की। दिस वॉज अ कंडीशन दैट स्टंट ग्रोथ एंड रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। उससे क्या होता है कि जो उसकी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, यानी कि जिसका ट्रीटमेंट है वो भी बहुत कॉस्टली है। आई मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस बाय लिविंग अर्जेंटीना। मैंने ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइसेस करे अर्जेंटीना को छोड़ के, लिविंग माई फैमिली टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। उसने अपनी फैमिली तक छोड़ दी ताकि वो एक नई लाइफ को स्टार्ट कर से। बट एवरीथिंग आई डिड फॉर फुटबॉल टू अचीव माई ड्रीम। उसने जो भी करा फुटबॉल के लिए करा ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो आउट पार्टिंग और डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सेड मेसी। उसने क्या करा? ही फोकस ऑन हिज गोल। उसने अपने फुटबॉल पे, उसने अपने ड्रीम पे फोकस करा। उसने कुछ नहीं देखा, कभी पार्टी नहीं करी, कभी कुछ नहीं करा। ही जस्ट फोकस मतलब वो इतना फोकस्ड था, इतना डिटरमाइंड था कि वो अपनी इस ग्रोथ से भी ओवरकम, अपनी इस जो उसकी वो थी बीमारी थी उससे भी वो ओवरकम हो गया, और उसका टैलेंट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज भी किया गया, ठीक है। Now, identifying people and resources. What does it mean? Identifying people and resources. Resources means people. आप लोग सब समझ रहे हैं कि those who are going to help you. And what are the resources? आपके पास क्या क्या तरीके हैं? सपोज आपका एग्जाम ही है, आपका जीके का ही एग्जाम है, आप बस ये एज्यूम करो। तो जब जीके का एग्जाम है तो आपको क्या चाहिए? आपको बुक चाहिए,
ठीक है। और अगर मैम ने कोई नोटबुक में काम कराया तो आपको नोटबुक चाहिए। ये रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, या आपके पास आपका फोन कि मैम की वीडियो लेक्चर जो है वो फोन में है। ये 3 रिसोर्सेज अवेलेबल होगी। और पीपल कौन सा कि मुझे मदर चाहिए मम्मी पापा मतलब फैमिली मेंबर्स की भाई दे आर टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे टाइम पे खाना मिल रहा है, मेरे टाइम पे क्लोथ्स मुझे मिल रहे हैं, मुझे घर का कोई काम नहीं करना। सो मतलब वो पीपल और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना हु इज गोइंग टू हेल्प यू to achieve your goals। ठीक है, आपकी हेल्प कौन करने वाला है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दिस इज द 4th इंपॉर्टेंट स्टेप इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। वी आर ऑन द 4th स्टेप ऑफ द गोल सेटिंग प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ विदाउट हेल्प। वी ऑल नो दैट। हम कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में अचीव कर सकते बिना हेल्प के। इवन छोटा बेबी होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी, व्हेन ही यूज्ड टू फीड फ्रॉम फीडर फ्रॉम बॉटल, तो उसको भी हेल्प की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं कि जी बोतल मुंह में लगा दी, उसकी फीडर मुंह में लगा दी और छोड़ दिया, नहीं ना। यू हैव टू हेल्प हिम, कि आप उसको पकड़ के रखोगे तब वो दूध पी पाएगा। The idea is to identify people who have the potential to help you and also find out what resources you will require to make your challenges less difficult। कि आपको कौन कौन से resources चाहिए अपने challenge को difficult कम बनाने के लिए, and who are going to help you। Suppose आपका एग्जाम है, ठीक है, और रिसोर्सेज में आपके पास बुक और नोटबुक तो है, बट यू आर नॉट हैविंग फोन जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे? क्योंकि मैम ने जो भी समझाया वो तो वीडियो लेक्चर्स में है। अब मैं उसको कैसे गो थ्रू करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, यानी कि आपके लिए चैलेंज जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड आपकी मम्मी क्या कहती है, मैं नहीं बनाऊंगी आपका खाना, ना मैं आपके कपड़े धोऊंगी, ना मैं आपका रूम साफ करूंगी, सब काम आप अपने आप खुद करो। अच्छा, तो पहले आप अपना खाना बनाओगे, फिर अपने कपड़े धोगे, फिर अपना रूम साफ करोगे, फिर आप पढ़ने बैठोगे, इतने में तो आप थक जाओगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से पीपल जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज यू हैव टू मेक इट लेस डिफिकल्ट। ओके, तो लेट्स सी एन एग्जांपल फ्रॉम मैसिव लाइफ। वी हैव ऑलरेडी सीन he had a coach who identify, अब मेन क्या है इसमें, he had a coach who identified the potential and helped him to achieve it। मेसी का जो कोच था उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, मेसी में पोटेंशियल है और वो इस चीज को अचीव कर सकता है। तो मेसी का जो कोच था, दैट पर्सन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, और उसने मेसी को हेल्प करा अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल फ्रॉम मैरीज कॉम लाइफ एज वेल। अब हम मैरी कॉम की लाइफ का एक एग्जाम्पल लेंगे। अंडरस्टैंड हाउ हर हस्बैंड हेल्प हर अचीव हर गोल्स। इसमें उनके हस्बैंड ने उनकी हेल्प करी, कैसे हेल्प करी देखते हैं। Mary Com husband Honor Com is a rock solid support। He said rock solid support। rock solid support का मतलब होता है कि इतना strong support कि कुछ भी हो जाए, जो आपके पीछे जो आपका सपोर्टर है वो तो कभी वीक पड़ेगा नहीं और ना ही आपको कभी वीक पड़ने देगा। At all times, from cheering her on in the boxing ring to changing diapers at home। changing diapers at home का मतलब कि उसका बहुत छोटा बेबी था when he start coming back to the ring, तो चीयरिंग करने से वो अपने बेबी के डायपर्स भी चेंज करता था। ऑनलाइन डजंट मैरी ड्रीम्स डजंट लेट मैरीज ड्रीम ब्राइट। ऑनलाइन ने क्या करा, वो नहीं चाहता था कि मैरी का जो ड्रीम है एक बॉक्सर बनने का वो खत्म हो जाए, उसने ऐसा करने भी नहीं दिया। ही पुट हिज करियर ऑन द बैक बर्नर, सेंड हिज वाइफ टू प्रैक्टिस एंड रॉक देयर ट्विन्स इन्फेंट्स टू स्लीप। मतलब वो क्या करता था कि मतलब अपनी वाइफ को तो भेज देता था कि गो फॉर द प्रैक्टिस। और इन्फेंट्स का मतलब होता है अ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि 1 साल से भी छोटे बच्चे, उनको वो घर पे सुलाता था, उनका ध्यान रखता था और खुद जो है अपनी वाइफ को भेजता था, नो यू विल गो एंड प्रैक्टिस एट योर प्रैक्टिस फॉर योर बॉक्सिंग। ओके, सो ये था हमारा मैरी कॉम का एग्जाम्पल। With this, we have covered almost our full chapter. Now let's see the example. Expert view. What the Sania Mirza is saying? After his historic doubles, no, I'm not going to read it. It's a homework, and what you have to do, you have to make a summary of it. इसकी summary बनाओ and send me. Okay, make a summary of this and send me. Now let's come on the last step of the goal setting process. The last stage, but the crucial stage in goal setting, is to list your milestone and timelines. Ab this is the time you have to list your milestone and your timelines.
इफ यू हैव अ गोल विदाउट नोइंग व्हेन यू नीड टू अचीव इट, इट इज ऑफ नो यूज। गोल तो है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम उसे कब तक अचीव करोगे, तो वो किसी यूज का नहीं है। सेट रियलिस्टिक टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल। रियलिस्टिक टाइमलाइंस मीन्स आप 8th में और आप कहो कि मैं 2 साल में सीए बन जाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि यस I'm in 8th standard but I want to be a swimmer or I want to be I want to be a swimmer champion in coming 4 years or in coming 2 years, so yes, it is possible, okay, of your age limit. To set timelines, break the goals into smaller and more achievable sub goals. अब टाइमलाइन सेट करने के लिए अपने गोल्स को छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड कर दो और उनकी फिर टाइमलाइन सेट करो कि आप उसे कब तक अचीव करोगे। Then making timelines and milestone will not be difficult. फिर milestone और timelines बनाना आपके लिए इतना difficult नहीं होगा। Got it? So look at the example of my milestone. My milestones मतलब भी example दे रखा है। 76-77 में playing first division cricket, 77-78 में playing for the state, 78-79 में उन्होंने क्या करा, रणजी ट्रॉफी, 80 में साउथ जोन मैच, 81 प्लेयर फॉर इंडिया, प्लेड फॉर इंडिया। फर्स्ट मैच किसके अगेंस्ट था, इंग्लैंड के इन मुंबई, राइट। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी भी आपको खुद ही करनी है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर गोल। Think and list the challenges that you think you will have to face to attain your desired goal. It is related to the step 3, identifying obstacle. Step 3, आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू फेस इन अचीविंग योर गोल, यू हैव टू डू इट। नाउ एक्टिविटी 5 ऑल्सो कि हु इज गोइंग टू हेल्प यू, ये आपका स्टेप 4 से रिलेटेड है। आइडेंटिफाइंग पीपल एंड रिसोर्स। That who is going to help you to achieve your goal, okay? And activity 6 is related to step 5, okay? So you have to do these 3 activities and one more of that of कि आपको जो summary बना के भेजनी है। Page number 14 and 15, activity 4, 5, 6, you have to do this, okay? Now what they are saying, it is never easy to achieve goal. कभी भी आसान नहीं होता गोल्स को अचीव करना। We all know that. All of us must go through struggles in life to achieve what we want. ये भी हमें पता है कि हमें स्ट्रगल्स से के थ्रू गुजरना पड़ता है, हमें जो भी अचीव करना होता है। If there is no pain, my friends, there is no gain. That's why कहता है ना, no gain without pain, है ना, या नो पेन नो गेन। तो यही है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, अगर हमें अपना गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें पेन तो लेना ही होगा, राइट। अब पेन ही वाला नहीं है कि हाय आपको दर्द हो, नो। पेन का मतलब होता है कि दैट व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल्स के लिए क्या करते हो, ठीक है। सो नाउ रीड गावस्कर अचीव्ड हिज गोल, हाउ ही अचीव्ड हिज गोल। आई प्रैक्टिस अलॉट, मैं बहुत प्रैक्टिस करी। आई वुड प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता था। आई वुड प्रैक्टिस इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को भी करता था। 3 hours इन द मॉर्निंग, देन गो टू स्कूल, देन आफ्टर द स्कूल, स्कूल जाने से 3 घंटे पहले, स्कूल आने के बाद अगेन प्रैक्टिस फॉर अनदर 2.5 hours, और उसके बाद फिर वो 2.5 hours के लिए 3 hours के लिए करता था। आई नीड टू बैलेंस माई स्टडीज, माई एजुकेशन अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। वो कहता था कि मुझे अपनी स्टडीज को भी बैलेंस करना है, अपनी एजुकेशन को भी करना है प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि वो प्रैक्टिस को प्रैक्टिस के लिए अपनी स्टडीज को नहीं छोड़ सकता था, ठीक है। सिंपली बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन आई प्लेड क्रिकेट वॉज नॉट अ करियर ऑप्शन, क्योंकि वेन ही प्लेड क्रिकेट को एक करियर ऑप्शन नहीं मानते थे। आज के टाइम में तो यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। इवन इफ यू वांट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो उसके लिए भी कोर्सेज हैं एंड बहुत अच्छे लेवल पे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। पहले के टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं होता था मेकअप आर्टिस्ट का, ना क्रिकेट, मतलब पहले के टाइम इट्स वेरी डिफरेंट, वो सिर्फ स्टडीज पे फोकस करते थे, ठीक है ना। तो अगर आपने MS धोनी मूवी देखी हो तो उसमें भी उसके फादर जो थे वो फोकस करते हैं कि क्या रखा है स्टडीज में, क्या रखा है, या गवर्नमेंट जॉब करो। सो ही फोकस ऑन दैट वन रेदर देन द क्रिकेट। तो गावस्कर भी यही कहते थे कि मतलब उस टाइम पे क्रिकेट कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे अपनी
अपनी स्टडीज पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता था. इट हैज बिकम अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ, एज आई टोल्ड यू, कि अब बन गया है विद द काइंड ऑफ मनी दैट हैज कम इनटू द स्पोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मनी. ठीक है, एंड दैट इज टेरिफिक, बट इट वाज नॉट अ करियर ऑप्शन देन. लेकिन उस टाइम पे वो एक करियर ऑप्शन नहीं था. लाइक अब तो स्केट्स होती हैं, क्रिकेट होता है, तो प्रॉपर कोचिंग होती है उनके लिए. अच्छे से आपको बहुत छोटे से, इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड, तो आपको ट्रेन किया जाता है. सो यू हैव टू बैलेंस योर स्टडीज एज वेल एज योर क्रिकेट. तो आपको अपनी स्टडीज और करियर दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता था. यू लव फॉर द गेम, योर लव फॉर द गेम मतलब जो प्यार था, जो कहते हैं ना कि ओ माई गॉड पबजी इज माई लाइफ, फ्री फायर इज माई लाइफ और स्विमिंग इज माई लाइफ, तो ऐसा ही उनका क्रिकेट के लिए था. Which meant that you had to show dedication to a practice. I'm using this word again and again. Dedication, focus, determined, and the discipline to be able to go back to your books and study. एक डिसिप्लिन का मतलब कि अगर आप 3 घंटे क्रिकेट खेल चुके हो तो इट मीन्स नाउ यू हैव टू स्टडी. आपको फिर बार बार अपने क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना. 3 घंटे पढ़ाई और 3 घंटे क्रिकेट, यू हैव टू बैलेंस. दोनों को मिक्सअप नहीं करना. क्रिकेट के वक्त पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना और पढ़ाई के वक्त हमें क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना. I suppose that to be able to do that at an early age, to be able to balance it out, certainly went a long way in helping in my cricket career. I suppose to be able to that at an early age. मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था, मतलब बहुत छोटी एज में मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं ये दोनों चीजें करूं. टू बी एबल टू बैलेंस इट, और मैं बहुत छोटा था इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए. सर्टनली वेंट अ लॉन्ग वे, एक बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़ा अपने क्रिकेट करियर को बनाने के लिए. एंड डेफिनेटली जो ये बैलेंसिंग मैंने करी, इसने मुझे बहुत हेल्प करा अपने करियर को अचीव करने में. अब what advice he is giving to you? My advice to you is to set goals on a yearly basis. आप अपने goals को जो भी set करो वो yearly basis, कि this year I am going to achieve this year I am going to achieve this. So ये चाहे सारी चीजें आप year के वाइज करो. Set smaller goals and achieve them. छोटे छोटे goals को set करो और फिर उन्हें achieve करो. And do it on a step by step basis. और step by step basis पे उन्हें follow up करो. ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे साइकिल सीखनी है तो मैं आज ही सीख लूं. नहीं, अगर आप चाहते हो कि मुझे साइकिल सीखनी है तो डू इट ऑन अ स्मॉलर. ठीक है, तो हमें छोटे छोटे स्मॉलर बेसिस पर अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए. When you do that, as I have illustrated with live examples, it become easy to achieve your goals. जो भी examples हमने पीछे पढ़े, हम उसके बेसिस पे इसे easily achieve कर सकते हैं. इसे मीन्स जो आपके goals हैं हम उन्हें easily achieve कर सकते हैं. Right. One more activity is there, but no, we are not going to give. I'm not going to give you it in a homework. We are going to do it right now. The question is: there are at least 10 careers in the jumper grid given below. Identify and circle them. It's my favorite game. I hope आपको समझ में आ गया, because every time I used to play this. So ये आपका 10 है, more than 10 है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मुझे म्यूजिशियन मिल गया, बैंकर, ट्रेनर, टीचर, लॉयर और ट्रेनी, वेंडर, डॉक्टर. ऊपर नीचे ऐसे नहीं है, टेलर हो गया, साइंटिस्ट, फिशरमैन, प्लम्बर, लाइब्रेरियन, शॉपकीपर. सो यहाँ पे और भी हैं, आप ढूंढ सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोच, COA, नहीं कोच नहीं बन रहा हो, बट यहाँ पे और भी हैं. अगर आपको मिलता है तो यू कैन डू इट. ओके, तो आप इसे ढूंढ सकते हैं. So that's all for today's class. But there is one important information, dear students. By mistake आपके सिलेबस में मेंशन नहीं हुआ है कि that in GK there will be notebook work also. So आपने नोटबुक में जो भी वर्क करा है आपके हाफेली में वो भी आएगा, राइट? और हाफेली में आपका PT1 सिलेबस भी इंक्लूड होएगा. So I hope you are preparing well for your half-yearly exams, as very soon they are going to start. Very soon in the sense, yes, in the last month of September or in October, but we are going to start it very soon, and for that test we will be start on the regular basis. So students, stay home, stay safe, take care, and thank you.